Hello students. So last class when we discussed a few mnemonics, many people have requested to explain a few more words on this. So I'm here again to tell you a few words that we can learn through mnemonics. Let's understand a few today again in this video. The first word that I want to discuss today with you is humdrum. We say the word is humdrum is the word. Humdrum is, we call it boring, or you can say monotonous. There is one word known as banal. Trite we call. At times we say the word is cliche. We say these words are all the synonym of the word humdrum, boring. Now something, one boring is something when you go to the cinema hall, you do not like the movie much, so you feel that boredom. That is a different thing. Boring means when you are doing the same thing repeatedly and then you get sick of it doing, like there is no change in this is also a routine kind of thing. So we say the humdrum of the city life. कि आप सुबह जल्दी निकलते हो, भागते हो, ऑफिस पहुंचते हो, शाम को आते हो. What is this? This is humdrum. That we say monotonous होता है, banal होता है, trite होता है, cliche होता है. Many words for this is humdrum is the word. Okay? जो routine में कर करके आप पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं. That's what humdrum होता है. There is no excitement in that. Now you want to learn by mnemonics when we say this. तो humdrum we say. एक तो ऐसा मान लीजिए when I read first time this word I realized something of this kind कि यार इसमें कोई हमड्रम में कोई ड्रम होगा, तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि हमड्रम में कोई ड्रम नहीं, यानी कोई म्यूजिक नहीं, कोई डांस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं. हमड्रम मतलब डल काइंड ऑफ थिंग. देयर इज नो ड्रम इन दिस. तो मैंने तो ऐसे याद किया कि नो ड्रम. When I was reading the explanation somewhere, the fellow was trying to tell us this. The book was saying कि हमड्रम को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यार ये I write again हम और ये ड्रम हो गया. तो अब ये हम और ये ड्रम है, इसको तो आप हम कह दीजिए और इसको कह दीजिए दम. तो यानी आपका कोई हमदम नहीं है, ऐसा वो मान रहा है. हमदम है. और हमदम मतलब कौन होता है? जो बड़ा एक्वेंटेंस होता है, वेरी क्लोज होता है, जिससे आप कुछ शेयर कर सकते हैं, हमदम होता है. यानी लाइफ में यू हैव टू हैव सम फ्रेंड्स where you can go and then discuss your whatever feelings and all. So हमदम होना है. लेकिन कोई भी अगर आपका ऐसा कोई close associate नहीं है, then you won't be able to share your things with the fellow. So then your life will be very monotonous, very boring. You can say हमदम हो जाता है. We call it humdrum हो जाता है. Okay, that is humdrum. Hope you understand this. Now the second word we say is abash. Abash we say the answer for this is embarrassing. This is something abash means something very embarrassing. ठीक है? It was abash we say. Now embarrassing हो गया. तो अब अबैश का embarrassing में अगर मैं याद करने लगूँ तो मैं ऐसा देखता हूँ कि यार ये a और ये बैश है. तो I break it like this कि a plus bash है. And bash, you know, birthday bash, new year bash, something kind this, we say it is party. And during word power made easy when we were studying, we realized that a is a negative prefix. तो when I say something bash हो गया, यानी आप negative bash हो गया, आपने you threw a party, okay? But it turned out to be a flop. कुछ भी प्रॉब्लम हो गई या ज़्यादा लोग नहीं आए या not much of the excitement you could really make out of the party. So what happened? It turned out to be क्या? An abash. Bash का उल्टा humiliating हो गया, बड़ा embarrassing हो गया. We say like this. So when it is abash, it is embarrassing होगा because it was not the bash that you were looking for. A bash हो गया, negative bash हो गया, negative party हो गया. ऐसा कुछ याद कर सकते हैं. abash से आपको इसीलिए ज़्यादा पूछा. Then we say the word is abate. Abate is reduce, lessen,
word is mitigate, you know. One word is ebb. This is all to reducing है. Abate होता है, कम होना होता है. Tide normally क्या होती है? After the tide, the waves, this thing when the tide abated, we say like that. Storm abated, we say like that. Your anger abated means then you went and then said sorry to your mom. That is abate. When it reduces, abate हो जाता है. Okay. Now abate और अगर याद रखो तो यार कहीं ना कहीं ये रिबेट जैसा नहीं आता. अबेट रिबेट ऐसे याद रहता है. तो जब आपको कोई चीज रिबेट पे मिलती है तो फिर क्या हो जाता है? When you get something in rebate, it means वो reduced ही तो हो जाती है. तो रिबेट जैसे आपको किसी चीज पे रिबेट मिल रही है यानी वो लेस प्राइस पे मिल रहा है. सिमिलरली आप रिबेट है तो वैसे ही अबेट है. तो टोन में याद कर सकते हैं, याद रहेगा, लेसन होना होता. ओके. Then word is acrid. Acrid we say is humiliating और harsh होता है. Acrid statements normally we say humiliating, जो किसी को सिवर करें, बहुत ज्यादा harsh वाली हो जाती हैं, we say acrid statements हो जाती हैं. Humiliating statements हो जाती हैं, harsh statements हो जाती हैं. Acrid वो होता है जो sophisticated नहीं होता, harsh हो जाता है. That is acrid है. Now when you want to say the acrid, तो यार याद हो जाता है acrid को. आप ध्यान से देखो तो ये acidic जैसा फीलिंग आती है. Acrid, acidic. You just read this, acrid and acidic. You will come to know. Tone वैसा ही आता है. Acrid पढ़ते ही acid जैसा आता है. अगर R हटा दो बीच में से तो acid आता है. तो acrid और acidic means जैसे एसिड आपको हार्म कर सकता है वैसे एक्रिड स्टेटमेंट्स कैन हार्म यू. दैट्स व्हाट द से एक्रिड हो जाता है. देन मेले इज द वर्ड. मेले इज द वर्ड वी से दैट इज कंफ्यूज्ड क्राउड वी से और स्कफल. मेले. When in the melee, when the police opened fire, in the melee kind of thing, there was chaos. We say it was something of this kind. I wanted to pass through the melee. Means वो पूरे शोर शराबे में से मैं जल्दी से निकल जाना चाहता था. तो this is melee. Normally बोलते हैं melee is the pronunciation, but melee. अगर melee में word देखूं जो बता रहा है confused crowd है यानी बहुत अफरा तफरी वाला रश वाला मार्केट में से आप निकल रहे हो और scuffle हो रहा है यानी everybody is on the other person. आप ऐसा मान रहे हैं तो जिसमें लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं. सही लाइक दिस और काइट हसल बसल हो रहा है. ऐसा वाला शोर शराबी मार्केट में से आप निकलना चाह रहे हो. दैट इज द मेले. और ये तकरीबन ज्यादा हो जाएगा जब कुछ पीछे से कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, जी बम ब्लास्ट हो गया, पुलिस आ गई, कुछ ऐसा. तो काइंड ऑफ फिजिकल कैओस को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है. शोर शराबे को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है. मेले होता है. नो अगर ये मेले देखो तो ये मेले काइंड ऑफ थिंग ऐसा माहौल. मेले और मेला काइंड ऑफ वैसे ही होता है. तो मेली और जो वर्ड है मेले का कहाँ आपको ऐसा कंफ्यूज क्राउड और स्कफल मिलेगा? ये आपको ऐसे मेलों में ही मिलता है. अभी भी ज्यादा मेले तो नहीं होते शहरों में जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, बट आई अंडरस्टैंड लाइक अगर आप दशहरा देखने जाओ ड्यूरिंग दैट पीरियड वी फाइंड सच क्राउड इज देयर ऑन दैट दशहरा इवेंट एंड दैट पर्टिकुलर रश इट इज व्हाट दिस इज द सेम थिंग मेले. सो नो मेले मतलब मेला है और तो एक्रिड मतलब एसिड है. अबेट मतलब रिबेट है. अबैश मतलब नेगेटिव बैश हो गया. और फिर आपका हमड्रम मतलब जिसमें कोई ड्रम नहीं या कोई हमदम नहीं यानी बोरिंग. ओके, कैन यू नोट दीज वर्ड्स? आई विल एक्सप्लेन फर्दर. So after these words, let's understand a few more words. Berate करना होता है. Berate करना किसको? We say belittle, you can say. किसी के एफर्ट को कम करना, कम आंकना होता है. You can say we in general term we can use like this. Criticize भी कह सकते हैं. Criticize का एक वर्ड होता है censure, you know the word. Then similarly you know the word rebuke होता है.
too many such words where you want to condemn the other person, we say berate कर लेना हो. So she tried to berated my effort. Okay, berated मतलब reduce करने की कोशिश की, उसने तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, kind of thing. Berate हो जाता है. Okay. Now किसी को disparage करने वाली feeling होती है इसमें. Now berate कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं मान सकते कि B plus rate कर रहा है. तो किसी को कभी आप A रेट करते हो और किसी को B रेट करते हो, तो जिसको A रेट करोगे उसका बेटर रेट करोगे, जिसको B रेट करोगे नेचुरली उसको हल्का रेट करोगे. तो when you try to B rate someone, it means you want to reduce his efforts, you want to condemn his efforts. That is what the case is. B rate. Hope you understand this. अब क्लियर समझ आता है B rate और A rate में डिफरेंस क्या होता है. Okay. Then the word is expunge होता है. Expunge means to remove होता है. Expunge is to remove. That is what the case is. Expunge, remove होता है. See, when a minister made one statement in the parliament, I was hearing this there, and the speaker said that we really need to expunge this statement from the today's debate, which otherwise would be recorded. So they just removed कि ऐसा तो किसी ने बोला ही नहीं. That is expunge होता है. Remove कर देना होता है. That is what expunge होता है. तो भाई expunge बोलने पर, अगर आप देखो expunge बोलने पर ये स्पंज जैसी फीलिंग नहीं आती, ऐसी फीलिंग नहीं. एक्सपंज, स्पंज, तो फिर स्पंज कब यूज करते हैं? टू क्लीन समथिंग. ऑन अ विंडो इफ देयर इज फॉग, यू जस्ट यूज स्पंज. व्हेन यू आर क्लीनिंग योर फ्लोर और समथिंग, यू यूज स्पंज. व्हेन यू रिमूव दिस व्हाटएवर रिटन ऑन द बोर्ड, सो व्हाटएवर वी राइट, the duster we are using, what is that? That is sponge. यानी मेरे को तो याद है कि स्पंज यूज करते ही मैं रिमूव करता हूँ, तो एक्सपंज भी मतलब रिमूव ही होता है. तो इजीली लर्न हो जाता है, फिर दोबारा कभी करना ही नहीं पड़ता. इट इज इजी आफ्टर दैट, वी नो व्हाट इट इज. ओके. देन देयर इज वन वर्ड, ostracized. Ostracized हो जाता है. People write at times Z, at times C, S. When you write in the British English, it is S. Otherwise, dictionary also writes Z at times here. Ostracized होता है. Ostracized we say is general word. I say boycotted, or we can say outcast जिसे कहते हैं. That is ostracized हो जाता है. Sometimes earlier it used to happen in villages कि मान लीजिए someone made some mistake, तो क्या है कि वो पूरी पंचायत बैठ जाती थी और उसको फिर गांव से अलग कर देते, कम्युनिटी से अलग कर देते, कोई उसे पूछता नहीं था. तो जो अलग कर देना कम्युनिटी से, तो आउटकास्ट हो गया. बाइकआउट करना, जी कोई इससे बात नहीं करेगा, ये बंदा ऐसा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया. सम पीपल समथिंग ऑफ दिस काइंड, जिसमें आप कम्युनिटी से उसको अलग कर देते हो, उसको कंसिडर ही नहीं करते कि वो आउटकास्ट हो जाता है, वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाता है. ओके, दैट्स व्हाट द केस इज. नाउ ऑस्ट्रेसाइज वर्ड को अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेसाइज क्या, ऑस्ट्रेसाइज तो मैंने तो ऐसे याद करा कि ये ऑस्ट्रिच से मुझे याद है. ऑस्ट्रिच होता है. ऑस्ट्रिच इज अ काइंड ऑफ बर्ड, यू नो. देखने में वो एनिमल जैसी लगती है, लेकिन होती वो बर्ड ही है. दो टांगों पर ही होती है, और आपने देखो काफी, इसको हिंदी में शायद शतरमुर्ग बोलते हैं, बड़ी सी गर्दन होती है. Now from a distance, when you look, many birds are there, and you find ostriches also there. So what will you say from there? कि यार ये तो एनिमल लग रहा है, बट पास में आकर देखोगे आप कहोगे नहीं यार ये बर्ड ही है. यानी वो बर्ड पूरे ग्रुप में से एक हटकर नहीं दिखती. यानी हटकर दिखने वाला, ग्रुप से हटकर होने वाला काइंड ऑफ थिंग क्या हो गया? ऑस्ट्रिच और ऑस्ट्रेसाइज कहीं ना कहीं इजीली लर्न हो जाता है. दैट्स व्हाट वी से, ऑस्ट्रेसाइज. ओके, वी कैन डू दिस वे एज वेल. देन pandemonium. Pandemonium. Pandemonium is, what do you say? Pandemonium. Pandemonium is chaos, commotion है, confusion है, kind of thing. ये वाला confusion नहीं है, आप इससे confuse हो जाओगे. Let's not write the word confusion here. आप इतने रखिए, chaos और commotion. बहुत अफरा तफरी होती है. यानी क्लास में देयर वाज टोटल chaos when the teacher wasn't there. Everybody was doing kind of मस्ती. तो टोटल chaotic state थी, नहीं? तो that is chaos.
तो देन कमोशन आल्सो वही, कमोशन में भी बहुत शोर शराबा काइंड ऑफ मेली जो हमने बात की थी, उसमें भी तो कमोशन ही हो जाता है, समझ नहीं आता कहाँ पर क्या हो रहा है, वही कमोशन है। तो क्लास में जब आप शोर मचा रहे हो, जो टीचर इज नॉट अराउंड, तो एटलीस्ट क्लियरली समझ नहीं आता कि कोई क्या कर रहा है, दैट इज द पैंडेमोनियम है, chaos है, कमोशन है। ओके, नाउ व्हेन यू से द वर्ड पैंडेमोनियम, तो ये शोर शराबा, अफरा तफरी जिसे कहते हैं, तो पैंडेमोनियम को यार याद रखिए, ऐसे तो क्लियरली समझ आ रहा है। जब मैंने समझा तो वो कह रहा था कि पांडा प्लस हारमोनियम, देखो आप अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, पांडा और हारमोनियम भी ऐसा मान लो, पहले वाले में पांडा आ रहा है, फिर हारमोनियम आ रहा है, पांडा मोनियम। तो ये अगर पांडा हारमोनियम बजाएगा फिर तो आप समझ सकते हो कि क्या तमाशा होगा, मीन्स फिर तो शोर शराबा ही होएगा ना। इट मीन्स पांडा अगर हारमोनियम बजा रहा है, पैंडेमोनियम हो रहा है, तो फिर शोर शराबा ही है, chaos ही है, कमोशन ही है। Then it is easy after this to learn, okay? And then fiasco. Fiasco we say is utter failure. It turned out to be a fiasco. 10 of you tried something, it was going good, but ultimately it turned out to be a fiasco. Okay, this whole thing, पॉलिसी जो आपने चापउट करी उस पर काम किया, वो टर्न आउट टू बी फियास्को, टोटल फेलियर हो गया, अटर फेलियर हो गया, वी कॉल इट फियास्को। ठीक है जी, अब समझ आ गया फियास्को है। तो फियास्को को मैंने ऐसे याद करूँ तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि फिर से करो इसको, डू इट अगेन, फियास्को, फिर से करो इसको। तो फिर से करो कब करोगे? तभी तो करोगे जब आपका रिजल्ट बिल्कुल ढंग से नहीं आया होगा, तभी तो फियास्को हो जाएगा। तो फिर तो तभी तो फिर से करना पड़ेगा, यानी व्हेन यू डू समथिंग फिर से, यानी फिर से करो इसको, मतलब वो फेलियर है, देन वी से इट इज ए फियास्को। नाउ आई नो द वर्ड्स, बीरेट, एरेट, बीरेट, ओके, देन से एक्सपंज, स्पंज, देन से द वर्ड ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, आई से ऑस्ट्रिसाइज, मतलब बायकॉटेड ऑस्ट्रिच वाला मुझे याद है। एंड देन आई एम सेइंग द वर्ड पैंडेमोनियम, पांडा हारमोनियम है, और फिर से फियास्को, तो फिर मुझे याद आ गया फिर से करो इसको। फोर्स योरसेल्फ टू डू लाइक दिस। अच्छा यार कौन कौन से वर्ड है, दिमाग में अपने आप क्लिक होता रहेगा, जब बी रेट है, पांडामोनियम है, बस आपको याद होगा यार ये 10 वर्ड। कितनी देर लगी? बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो 15-20 मिनट्स, यू विल बी थ्रू विद 15-20 वर्ड्स। काइंडली नोट देम डाउन। So more words, let's say word is jaded होता है। Jaded is exhausted, tired you can say, fatigued, बहुत ज्यादा आप कुछ कर करके थक जाते हो, वो एक्साइटमेंट भी हो जाता है। जेडेड नॉर्मली यूज तभी होता है जब आपने बहुत फन पार्टी करी होती है ना, तो उसके बाद आप कहते हो बस यार बहुत हो गया, अब 2-4 दिन रेस्ट चाहिए, तब होता है जेडेड यूज। नॉर्मली ये नहीं काम कर करके कम ही यूज होता है जेडेड वर्ड। एक्साइटमेंट में नॉर्मली वी यूजिंग जेडेड, अदरवाइज भी यूज कर लेते हैं, बट मेनली लाइक दिस ओनली। तो जेडेड इज समथिंग व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, टायर्ड, फटीग्ड काइंड ऑफ थिंग, जेडेड होता है। नाउ जेडेड तो क्लियरली समझ आता है वर्ड। जेडेड को देखोगे तो मैं यही लिखता हूँ, फिर आप कंफ्यूजन होगा नहीं तो। फेडेड हो जाता है, तो फिर आप फेडेड ही है। पहले अपने लाइवली थे, पिंक थे, बड़ा वाइटैलिटी से भरे हुए थे, अब 2-4 दिन आपने नाइट पार्टी करी तो फिर 5वें दिन आपकी हालत खस्ता ही होगी, बॉडी रिक्वायर सम रेस्ट, तो यू विल बी फेडेड। से जेडेड, फेडेड, मुझे याद है कि जब आप जेडेड हो जाते हो तो फेडेड होते हैं, यानी लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड हो जाता है, दैट्स व्हाई से जेडेड हो जाता है। ओके, then diffidence. Diffidence is lacking confidence. Diffidence, because of the diffidence you have not been able to swim so far. Okay, 12th में आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा, बट डीप वाटर, यस। तो ही हैड द डिफिडेंस दैट ही वाज दैट फोबिया
तो डिफिडेंस हो गया था उसके अंदर, वो बोला कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं स्विम कर सकता हूँ, तो डिफिडेंस हो जाता है। डिफिडेंस किसी भी चीज का, मैथ्स किस लोगों से नहीं होता, दे हैव द डिफिडेंस, सो दैट इज द लैकिंग कॉन्फिडेंस हो जाता है। नो सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो डिफिकल्टी और कॉन्फिडेंस, आई से इट इज लाइक दिस ओनली, डिफी यानी डिफिकल्टी हो गया, और ये वाला क्या है, डेंस, तो मुझे याद है कॉन्फिडेंस। इट इज इजी आफ्टर दैट, यू हैव lacking confidence, that is you have diffidence, you are diffident character, we say diffidence हो जाए। okay, easy learn हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, it is easy after that। okay, then we say the word paucity, good word, the word is paucity, paucity is scarcity, shortage, जिसे स्कैंटी होते हैं, कम वाला होता है। तो आप कहते हैं यार मैं मिलने नहीं आ पाया, सॉरी यार, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, यू कैन से ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई कुड नॉट रियली मैनेज द थिंग्स। पॉसिटी ऑफ टाइम इज अ बेटर वर्ड, आप शॉर्टेज भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पॉसिटिव बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अनदर सिनोनिम टू दिस पॉसिटिव हो जाता है शॉर्टेज का, जिससे स्कैर्सिटी होता है वैसे ही पॉसिटिव। तो पॉसिटिव इजीली समझ आता है कि शॉर्टेज है। अब देखो याद करना है तो यार ये सिटी, ये पॉर, तो पॉसिटिव को मैंने तो ऐसे याद करना है कि पुअर एंड city, poor city, poor city, when you are in a poor city naturally paucity होगी यानी shortage हो जाएगी, paucity हो जाता है। it is easy after that to learn। okay, then hooligans, hooligan कौन होगा, we write the word hooligan, hooligan is the one who was a troublemaker, who troubles others due to their, I say, rowdy activities। That is hooligans होता है। अरे सड़क पर लड़के जाते हैं मोटरसाइकिल पर चिल्लाते रहते हैं, तीन लड़के बैठ जाते हैं बिना हेलमेट वाले, और 10-20 मोटरसाइकिल चला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं इस तरीके से। व्हाट इज दैट डूइंग, उनकी एक्टिविटी से आपको दिक्कत हो रही है, तो दे आर द हूलिगन्स। ओके, दैट वी से जो ट्रबल मेकर, जनरल पब्लिक को उससे परेशानी हो रही होती है, वो हूलिगन्स होते हैं। दैट इज व्हाट द हूलिगन। अब यार इसको याद करने का तरीका क्या है, हुली और गन है, तो जो होल्ड और गन होता है, जिसके पास वो गन होगी, जो होल्ड ए गन करेगा नेचुरली यार वो सबको ट्रबल ही करेगा, वो से लाइक दैट ओनली, होल्डिंग ए गन इज व्हाट हूलिगन हो जाता है। नहीं तो देन इट इज इजी आफ्टर दैट कि अगर आप समझ पाते हैं कि यार ये कहाँ से आ रहा है हूलिगन, इट इज इजी हो जाएगा, यानी होल्डिंग ए गन हूलिगन हो जाएगा। देन एक वर्ड था एक्मे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्मे? Acme is top, apex we say. We say the word paramount. जो उसका जो टॉप ऑफ ए माउंटेन से लाइक दैट, तो यानी किसी भी चीज का टॉप पॉइंट जो होता है वो अपेक्स होता है, वो पैरामाउंट होता है। ठीक है, तो टॉप इज अपेक्स है, तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो वर्ड नादिर होता है। नादिर इज दी bottom of the universe, that is the nadir, but top is apex है, paramount है। ठीक है, now we say acme होता है, top वाला होता है, तो acme होता है। तो very funny, like say when I was reading acme, ऐसा आप समझ सकते हो कि यार एक मार्केट में वर्ड प्रोडक्ट आता था, शायद ये आता है लैक्मे करके, कॉस्मेटिक्स का। तो a woman uses the word, the product Lakme, why so? Because she wants to make her ब्यूटी appear better, though she is beautiful, but Lakme यूज कर वो अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहती है। तो यानी वो woman uses Lakme because she wanted to be at the acme of her beauty। तो Lakme, Acme, यानी फिर आपके दिमाग में आता है कि Lakme औरतें क्यों यूज करती हैं यार, और भी बड़े ब्रांड हैं बट मैं Lakme से बात कर रहा हूँ कि Lakme औरतें क्यों यूज करती हैं कि वो they want to be at the acme of their beauty, they want to just make them appear
better, say like this. तो acme और lacme यानी वो बढ़ाने के लिए, टॉप के लिए, then we say apex और paramount हो जाता है, यानी टॉप ऑफ it. यानी करियर भी हो सकता है, लेकिन एक्मे अभी फिलहाल हम टॉप को बोल रहे हैं. दैट इज एक्मे, और लैक्मे से अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो फिर आपको याद रहेगा ये वाला लैक्मे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. ओके, एक और देखिए वर्ड फ्लैबरगास्टेड. एक वर्ड होता है flabbergasted. When you flabbergasted, what is this? Flabbergasted. Flabbergasted is shocked, astonished. Astounded is the word. When you are flabbergasted. Seeing him there in the party, I was totally flabbergasted. That is what the flabbergasted है. शॉक हो जाते हैं, एस्टॉनिश हो जाते हैं, एस्टाउंडेड हो जाते हैं. अब फ्लैबरगास्टेड कहाँ से बनाए, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार ये वर्ड अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वर्ड फ्लैब से आया है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्लैब? अगर आप देखो फ्लैब, फ्लैबरगास्टेड, तो फ्लैब क्या होता है? फ्लैब होता है ना जब एक्स्ट्रा फ्लैश आपके यहाँ पर पाउचेस बन जाते हैं, फ्लैश लटकने लग जाती है, दैट इज नोन एज फ्लैब होता है. यू गो टू जिम एंड देन हिट द जिम जस्ट बिकॉज यू वांट टू रिड्यूस दिस फ्लैब, जो एक्स्ट्रा पाउच बन जाएंगे आपके, दैट इज फ्लैब. तो जब आप रोज अपने आप को देखते हो, अपने आप को शीशे में देखते हो, तो आपको फील नहीं होता. अगर आपको नॉर्मल है तो ठीक लगता है, बट द डे यू सी कि अरे यार कौन निकल रही है, यार एक्स्ट्रा फ्लैब आ गया, तो व्हाट यू सी, यू आर शॉक्ड कि अरे यार ये कैसे हो गया. बिकॉज वो एक एक मिलीग्राम करके बढ़ता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन बढ़ता है, जिस दिन बढ़ता है तो फिर आपको फ्लैब दिखता है. द डे यू सी द फ्लैब यू फील oh god, that feeling is astonishing की feeling है, shocking की feeling है, यानी flabbergasted हो जाता है. Now what I say word is jaded, faded, diffidence, lack of confidence, then paucity, porosity, hooligan, hooligan, acme, lacme, और फिर मुझे flabbergasted, मुझे flab मुझे याद है, I know this. यानी फिर हमड्रम क्या था, जिसमें कोई हमदम नहीं था. तो फिर अबेट क्या था, जिसमें रिबेट था. तो जिसमें बी रेट क्या था, कि जिसको आपने ए रेट नहीं किया था उसको आपने बी रेट किया था. तो फिर ऑस्ट्रसाइज क्या था, जैसे ऑस्ट्रिच था. यानी अगर एक बार थोड़ी देर की सोचोगे अच्छा बैश क्या था, तो अब सोचोगे अच्छा बैश का मतलब पार्टी होता है, तो बैश का मतलब नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एम्बैरेसिंग हो गया, यही तो है. तो फियास्को क्या है, फिर आपको याद आ जाएगा अच्छा यार फिर से करो इसको, होता है अच्छा यानी फेलियर है. दैट इज द वे. So I've discussed these 16 words with you, and I've written a few synonym whatever I could recall while writing. So if you revise this, you will have a grab around 15-20 words with you, and you have spent around 20 words in this video. I think you've added 20-25 words in your kitty. That is how we learn. I'll come again with a few words in the next video. Thank you very much for watching. God bless you all.